Hello, my dear students, how are you? I'm sure you must be in very high spirits. तो आओ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी करने से पहले लेट मी टेल यू व्हाट डू वी मीन बाय करंट कैरियर्स। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर करंट कैरियर्स, गिव एग्जांपल्स। So remember, the charged particles whose flow in a particular or a definite direction constitutes electric current are called current carriers. For example, the current carriers in the case of metals are free electrons. And what are free electrons? I will tell you just now. Then, in the case of semiconductors, the charge carriers or current carriers are electrons and holes. What are holes? This we will study in our last chapter on semiconductors. And the current carriers in the case of electrolytes are positively and negatively charged ions. And in the case of gases, remember, gases under normal pressure are insulators, but at very low pressure, when a high potential difference is applied across them, they become conductors, and the current carriers in the gases are, at low pressure of course, are electrons and positive ions. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेम द करंट कैरियर्स इन द केस ऑफ मेटल्स, आपने कहना फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आएगा क्वेश्चन नेम द करंट कैरियर्स इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, आपने कहना इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। नेम द करंट कैरियर्स इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आपने कहना है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। देन ही कैन से नेम द करंट कैरियर्स इन गैसेज एट लो प्रेशर, you will say that these are electrons and positive ions. Now I come to what are free electrons. So remember, the electrons present in the valence shell or the outermost shell of the atom of a metal are called free electrons, because these electrons are most loosely bound to the nucleus. मोस्ट लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस का मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस के कारण फोर्स लगती है, आपको पता है कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा होता है, नेगेटिव। देयरफॉर द न्यूक्लियस exerts an attractive force on each of the electron present in the outermost shell or in any other shell in the extranuclear part of an atom. And according to Coulomb, the magnitude of this force is inversely proportional to the square of the distance between the nucleus and the electron. That means F is proportional to 1 by r square. और outermost shell जो होता है किसी एटम का, उसके लिए जो उसका रेडियस है, रेडियस कह लो, यहाँ जो वैलेंस शेल है, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, आर सबसे ज़्यादा, तो उस पर जो फोर्स लगेगी न्यूक्लियस के कारण वो सबसे कम होगी। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव अबाउट एनीवेयर इनसाइड द होल वॉल्यूम ऑफ द मेटल। दैट मीन्स दे आर फ्री टू मूव just like the molecules of a gas, and therefore remember, the free electrons in a metal constitute a gas known as the electron gas. Electron gas means ऐसी गैस जिसमें molecules क्या हैं, electrons. And because these electrons are responsible for the electrical and thermal conductivity of the metals, that is why they are called conduction electrons. They are called conduction. So free electrons कह ले, conduction electron meaning is the same, and they are also called delocalized electrons. Conduction electrons कह लो, delocalized electrons कह लो, free electrons कह लो। और अगर आपसे को पूछे, ये भी बड़ा important question है कि what is the energy of a free electron? So remember, the energy of a free electron is zero. और जब हम एटम्स वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि द एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। फिर एक टर्म है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्वेश्चन आता एग्जाम में, वो कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय और डिफाइन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने क्या कहना है, डेंसिटी क्या होती है।
जैसे मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स number of free electrons per unit volume of a metal, that is known as the number density of free electrons in a metal. So remember, number density of free electrons in a metal is defined as the number of free electrons present in unit volume of the given metal, and its value is very large. It is of the order of 10 raised to the power 29 per meter cube. इसका मतलब अगर किसी मेटल का हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लें तो उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज अबाउट 10 रेज टू द पावर 29. सो रिमेंबर द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल इज वेरी लार्ज. अब हम डिफाइन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और बाद में मैं इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन पहले हम इसकी वर्डिंग समझ लें इसकी डेफिनेशन की. सो रिमेंबर, अगर आपको एग्जाम में आए कि डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हम क्या कहेंगे? द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल और ए मेटालिक कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड फ्रॉम इट्स नेगेटिव एंड टुवर्ड्स इट्स पॉजिटिव एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ the external electric field applied across it is known as the drift velocity. So it is the average velocity with which the free electrons in a metal get drifted from the negative end towards the positive end of the given metallic conductor when an external electric field is applied across it. Now let us derive an expression for the drift velocity. So remember, every metal has a large number of free electrons in it. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि नंबर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए पीस ऑफ मेटल और इन ए मेटालिक वायर इज़ वेरी वेरी लार्ज. Under normal conditions of temperature and pressure, without any external electric field, these free electrons are in a state of constant random motion in the body of the metallic conductor just like the molecules of a gas. ये random direction में move करते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है with different velocities, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो इतनी रैंडम है. आपको पता कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है डायरेक्शन भी होती है. तो क्योंकि एट नॉर्मल टेम्परेचर, जब हम जिसको रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं, अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते अक्रॉस ए कंडक्टर तो जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन रैंडम डायरेक्शंस जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस. तो अगर हम उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालें तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0. सो अगर मान लो किसी मेटालिक पीस में n इलेक्ट्रॉन है और उनकी वेलोसिटीज हैं u1, u2, u3 सो ऑन अप टू un. अब उनकी एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सब को ऐड करके डिवाइडेड बाई n. सो दिस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. सो याद रखो, एट रूम टेम्परेचर द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक कंडक्टर इज 0. लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नोट द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. और स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी. जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो डायरेक्शन भी हम कंसीडर करते हैं. तो जब रैंडम डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाती है. लेकिन जो एवरेज थर्मल स्पीड है दैट इज़ वेरी लार्ज. रिमेंबर, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब क्या बना कि जब तक हम किसी मेटालिक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डू नॉट मूव इन एनी डेफिनेट और इन एनी स्पेसिफाइड और इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. और अभी मैंने आपको बताया था कि करंट कैरियर्स किनको कहते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि द charged particles whose flow in a particular or a specific or a definite direction constitutes electric current are called current carriers. So ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में पूछते हैं कि अगर किसी मेटल में इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम
फील्ड नहीं भी अप्लाई करते तो उसमें से करंट क्यों नहीं फ्लो करता? तो आपने कहना क्योंकि उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है 0 एंड देयरफॉर दे डू नॉट मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट इज़ वाई दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लो जैसे ये मैंने फिगर बनाई है, इसमें ए बी मैंने लिया कंडक्टर और इसके ए एंड को जोड़ा बैटरी के पॉजिटिव से, बी एंड को जोड़ा बैटरी के नेगेटिव से। इसका मतलब इस कंडक्टर का एंड ए बन गया पॉजिटिव और एंड बी बन गया नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है, फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। तो ये मैंने ऊपर एरो बना के ई लिखा हुआ है वेक्टर, इसका मतलब ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये जो मैंने डॉट बनाया और नीचे लिखा ई छोटा लेके ऊपर नेगेटिव साइन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। डॉट का मतलब ये मैंने बनाया इलेक्ट्रॉन। तो ये क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कंडक्टर के किस एंड की तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव एंड, यानी कि ए की तरफ मूव करेगा। तो ये जो एरो हेड मैंने बनाया ये इसलिए बनाया है कि आपको पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन जो है गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। अगर ये जो बैटरी जोड़ी है इसका वोल्टेज कैपिटल V हो और ये जो ए बी कंडक्टर है इसकी लेंथ L हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज E इक्वल टू V बाई L। नाउ यू नो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज F ओवर Q, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E। तो इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स F लगे तो E आ गया F ओवर -E एंड देयरफॉर F इक्वल टू -E इंटू ई। ये जो नेगेटिव साइन आया यहाँ पे, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू दैट ऑफ ई। अब जैसे कि मैंने आपको फिगर में बताया, ई की डायरेक्शन है फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी और इसका मतलब फोर्स लगेगी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पे फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए। दैट इज वाई द इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड फ्रॉम द एंड नेगेटिव एंड बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ए। अब मान लो हर एक इलेक्ट्रॉन का मास है स्मॉल m और इस फोर्स के कारण हर इलेक्ट्रॉन पे उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन पैदा होगी। वो एक्सेलरेशन मान लो है a। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स ओवर मास। फोर्स ये देखो इक्वेशन 2 में मैंने लिखा है -E ओवर m। तो ये -E और ये तो फोर्स आ गई डिवाइडेड बाई m, ये आ गई एक्सेलरेशन। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन में इतनी एक्सेलरेशन पैदा होगी और क्योंकि वो किस तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है? फ्रॉम नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन पैदा हुई इसके कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन वो वेलोसिटी लगातार नहीं बढ़ती। क्यों लगातार नहीं बढ़ती? उसका कारण यह है कि एज द इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड फ्रॉम द नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, इट अंडरगोज कोलिजन्स। किसके साथ? विद अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और किसके साथ? विद द फिक्स्ड मेटल एटम्स। नाउ बिटवीन टू कोलिजन्स किसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती है, इसका मतलब वो एनर्जी गेन करता है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन उसकी वेलोसिटी कम होती है, इसका मतलब वो एनर्जी लूज करता है। तो इसलिए वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ती हुई वेलोसिटी से मूव नहीं करता टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। कभी वेलोसिटी कम होती है, कभी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इट गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड विद सम एवरेज वेलोसिटी विच इज़ गिवन द नेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको पता है लीनियर मोशन में हम पढ़ते हैं कि v होता है u प्लस ए टी। मान लो जो n फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने आपको कहा कि गिवन पीस ऑफ मैटर में हैं, उनमें से जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलरेशन हर इलेक्ट्रॉन की है a, और बिटवीन टू कोलिजन्स मान लो वो इलेक्ट्रॉन जो टाइम लगता है उसको कोलिजन सफ़र करने में, दैट इज़ द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, यानी कि एक कोलिजन होने के बाद दूसरा कोलिजन होने तक जो टाइम लगता है वो τ1 है। तो फार्मूला हमने यूज़ किया v इक्वल u प्लस ए टी। तो τ1 टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी मान लो हो जाती है v1, तो v1 आ जाएगा u1 प्लस ए τ1। u1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जब उस पर फोर्स लगनी शुरू हुई, a उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई है, और τ1 है जब उसने एक्सेलरेट होना शुरू हुआ, वो तब से लेके जब तक नेक्स्ट कोलिजन होता है उस वक्त तक का टाइम है τ1। सिमिलरली जो दूसरा मालिक्यूल है उसके लिए आ जाएगा v2 इक्वल टू u2 प्लस ए τ2।
u2 उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, v2 उसकी वेलोसिटी है कितने टाइम के बाद, टाउ 2. एंड व्हाट इज टाउ 2? इट इज द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन time taken between two collisions for the second free electron. Similarly, for the third free electron, v3 equal to u3 plus a tau 3 and so on. Vn equal to un plus a tau n. So these are the velocities of the various free electrons. Now, we define drift velocity as the average of all these velocities. That means if Vd is the drift velocity, then Vd equal to V1 plus V2 plus V3 plus so on plus Vn divided by n. अब V1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने U1 प्लस ए टो 1, V2 की पुट कर दी U2 प्लस ए टो 2, V3 की पुट कर दी U3 प्लस ए टो 3 प्लस सो ऑन, चलते जाओ, प्लस UN प्लस ए टो n और होल डिवाइडेड बाई n. अब देखिए ये मैंने क्या किया, यहाँ से U1 ले लिया, यहाँ से U2, यहाँ से U3 और यहाँ से UN. तो ये आ गया U1 Vd इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन प्लस UN डिवाइडेड बाई n और प्लस बाकी कौन सी टर्म्स बची, ए टो 1, ए टो 2, ए टो 3 सो ऑन. तो मैंने इनमें से ए ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आ गया टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस सो ऑन अप टू टो n डिवाइडेड बाई n. नाउ हैव ए लुक एट इक्वेशन नंबर 1. ये जो है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन प्लस un ओवर n, इट इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर विच इज 0. सो ये टर्म आ गई 0 प्लस a, और ये जो टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस टो n ओवर n, इसको मैंने टो लिख लिया. एंड व्हाट इज टो? इट इज द average relaxation time of free electrons, average relaxation time of free electrons. And remember, it is of the order of 10 raised to the power minus 14 second. So therefore Vd equal to a tau, और फिर मैंने a की वैल्यू पुट कर दी minus e over m into tau. That means drift velocity equal to minus small e, where e is the magnitude of charge on electron, capital E, the electric field established across the ends of the conductor, m over, this is the mass of the free electron, and tau is the average relaxation time. So this is the required expression for the drift velocity of free electrons in a conductor under the influence of the external applied electric field E. The magnitude of this velocity is given by Vd mod लिख लो इसको, या इसको Vd विदाउट एरो लिख लो. तो नेगेटिव साइन छोड़ दो, एरोज भी हटा दो, तो आ गया ई ओवर एम इंटू टाउ. अब आपको पता है स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, और टाउ जो है फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स ये भी मैंने आपको बताया इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू द पावर minus 14 सेकेंड, ये भी कांस्टेंट हो गया. दैट मीन्स Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई. सो जितना हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी कि जितनी ई की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी. सो दैट इज़ एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a metallic conductor when an external electric field is applied across it. Now, some very important points to be noted, which I called as the eye openers or high yield points. मैंने ये सब बातें आपको बता दी हैं, लेकिन just to revise these, पहली बात है कि average thermal speed, please underline the word speed, of free electrons in a conductor at room temperature is of the order of, metallic conductor ये होना चाहिए, at room temperature is of the order of 10 raised to the power 5 meter per second. याद रखो, कई बार ये मल्टीपल चॉइस में भी आता है, एक नंबर में भी आ जाता है, लेकिन उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है दैट इज 0. सो नोट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज थर्मल स्पीड एंड एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर. देन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पर minus 14 सेकेंड. देन number density of free electrons in a metal is of the order of 10 raised to the power 29 per meter cube, and drift velocity of free electrons is of the order of 10 raised to the power minus 4 meter per second. Remember, it is of the order of some millimeter per second.
तो कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें लिखा होता है कि इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ सो मैनी मिलीमीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर. And that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share, and subscribe to my channel. Stay home, stay safe. Thank you.